Hello everyone, welcome to another audio note with me, CA Preeti Agarwal. Up till now, we have discussed 3 units of Contract Act. We have learned provisions relating to formation of contract. Now let us continue and discuss performance of contract. The provision that we are going to discuss from now on concern the performance of contract. Contract is already made and now you are obligated to fulfill the promises. So in today's session, we are going to discuss performance of contract, that is what are the types of performance, who can perform the contract, and time as a sense of contract, joint promise, etc. You can purchase full podcast lectures where we discuss the section numbers in a story format and all the important provisions, the keywords, sentences from my website capreetyagarwal.com. We also have combos of the business law book and the compiler, which you can purchase from my website capreetyagarwal.com. We have lectures, books, and test series. So let's get started. Let us discuss performance of contract. Now, this particular chapter is important from theory point of view, and yes, you do get case-based questions, but also theory questions can be asked from this chapter. So, who can perform the contract, that is important for exam. Now, what is the meaning of performance? Performance means fulfilling your legal obligations. Yes, performing the promises made by the promisor and the promisee. So, contract is said to be performed when you either perform, that is actually perform, or you offer to perform your respective promise, offer to perform attempted performance, also known as tender. Now, who are the parties entitled to perform? This can be asked as a theory question. Section 40 says that the promisor himself will perform the promise. तो जिसने promise किया है वही तो contract perform करेगा ना. So, contract can be performed, must be performed by the promisor. लेकिन अगर वो नहीं कर सकता है देन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म्ड आइदर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर ऑथराइज पर्सन लाइक एन एजेंट. तो जिसने प्रॉमिस किया है वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा. इन फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स विच इन्वॉल्व पर्सनल स्किल, पर्सनल कंसिडरेशन मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ. जैसे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है तो जिसने प्रॉमिस किया है वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, कोई और तो कर नहीं सकता है. सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वही परफॉर्म करेगा, कोई और नहीं कर सकता. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्केल कंसिड्रेशन नहीं है या फिर पार्टीज़ ने खुद ही एग्री कर लिया है कि भाई प्रॉमिस ही खुद परफॉर्म करे, ठीक है, नहीं कर सकता है तो कोई और कर ले उसके बिहाफ पे, जैसे एजेंट है, देन इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी अदर पर्सन लाइक एजेंट. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द promiser. So in case of death the contract will be performed by the legal representative, लेकिन उसकी जो liability है that will be limited to the amount of estate of the deceased. So let's say for example that X promised to deliver goods to Y, then X dies before performance, his legal representative will perform the promise. But what about contracts involving personal skill, personal consideration? Those contracts will come to an end on death of the promisor, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा, उसके बिहाफ पे कोई कर ही नहीं सकता. इफ़ द प्रॉमिसर डाइज देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म्ड, cannot be performed by the legal representative, the contract becomes void. Sometimes the contracts may be performed by a third party. Let's say for example कि A has to pay money to B, A के पास तो पैसे नहीं हैं, तो C जो उसका फ्रेंड है खुद से B को 6,000 रुपीज़ दे देता है और B एक्सेप्ट भी कर लेता है. बाद में जाके B उसने तो C से ले लिया 6,000, बाद में जाके वो A से सिर्फ 4,000 रिकवर करेगा. देन वी हैव जॉइंट प्रॉमिस, सेक्शन 42. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम. इस पर मैनी टाइम्स केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी उसमें भी. स्टूडेंट्स, फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन यू कैन रेफर माई कंपाइलर. उसमें सारे आंसर्स हमने दिए हुए हैं इन द फॉर्मेट दैट यू रिक्वायर्ड टू राइट इन द एग्जाम, जैसे प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन. अच्छा, जॉइंट प्रॉमिस में व्हेन ऑल द प्रॉमिसर्स आर अलाइव देन दे विल ऑल परफॉर्म द प्रॉमिस. बट व्हाट इफ वन डाइज, then the legal representative of the deceased along with the others will jointly perform the promise. When all die, then legal representatives of all will perform the promise. तो जब सब alive हैं सब perform करेंगे. One dies तो उसका legal representative along with the others. अच्छा, all die तो सारे perform करेंगे. Then we have liability of joint promisers. सबसे पहले तो joint promise होता क्या है? See, when 2 or more persons make a promise to 1 or more persons, then it is known as joint promise. तो अगर 2 या उससे ज़्यादा लोगों ने किसी एक या उससे ज़्यादा लोगों को प्रॉमिस किया है then it is known as joint promise. जैसे A B C हैं, they have promised to pay 30,000 to D. तो A B C जो
तीनों प्रॉमिस कर रहे हैं, दे आर नोन एज joint promisors. When all are alive, they will all perform the promise. If one dies, then the liability devolves on the legal representative. This is known as devolution of joint liability, जो डिस्कस किया है सेक्शन 42 में. What if D को तो प्रॉमिस किया था ना कि हम तुम्हें पैसे देंगे, अब वो रिसीवर है ऑफ बेनिफिट. व्हेन ही डाइज, तो जॉइंट प्रॉमिसी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करेगा. दिस इज़ नोन एज डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, जो डिस्कस किया है सेक्शन 45 में. नाउ व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस? द प्रॉमिसर्स विल हैव टू परफॉर्म द प्रॉमिस जॉइंटली, लेकिन उनकी लाइबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट एंड सेवरल डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 43. जॉइंट एंड सेवरल का मीनिंग क्या होता है? मतलब हम साथ में तो लायबल हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली भी लायबल हैं. इसका मतलब है कि हम किसी भी एक पार्टी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कंपेल कर सकते हैं. जैसे X, Y एंड Z दे प्रॉमिस टू पे 30,000 रुपीज़ टू A. अब अगर प्रॉमिसर्स तो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं जैसे लोन लेके गायब ही हो गए, तो A ने जब X को एक दिन रोड पे देखा तो बोलते हैं अरे X इधर आ, तुम लोग तो जैसे पैसे लेके गायब हो गए, तू मुझे पूरा 30,000 दे. X मना नहीं कर सकता, वो पूरा 30,000 देगा, लेकिन बाद में जाके Y और Z से उनका कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकता है. अच्छा, हम तो गए थे Y और Z से उनका कंट्रीब्यूशन रिकवर करने, पता चला कि Y तो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो सिर्फ अपना आधा ही शेयर दे सकता है. तो भाई तू जितना दे सकता है उतना दे दे, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट है, जो भी डेफिसिट है, वो जो बाकी के प्रॉमिसर्स हैं वो इक्वली शेयर कर लेंगे. तो अगर सपोज़ तीनों की ऑब्लिगेशन है 10,000, वाई ने सिर्फ 5,000 दिए, तो उसका जो डिफिसिट था 5,000 का वो X और Y इक्वली शेयर करेंगे. तो अब X निकालेगा 12,500, Y ने पे कर दिए 5,000 और Z निकालेगा 12,500. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है. सेक्शन 44. X, Y, Z दे हैव टू जॉइंटली पे 30,000 रुपीज़ टू A. A ने X को रिलीज़ कर दिया, बोला चल तू पैसे मत दे, लेकिन Y और Z तुम तो पैसे दे दो. तो ये केस में Y और Z को 15,000 हज़ार रुपये दे के A की जो ऑब्लिगेशन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. अच्छा, पैसे तो दे दिए, लेकिन वो बाद में X जिसको रिलीज़ कर दिया हुआ था उससे उसका शेयर रिकवर कर सकते हैं. समझ में आई? तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर. टाइम एज असेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, सेक्शन 55 वो डिस्कस कर लेते, लेकिन उसके पहले ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है. अच्छा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस. मैंने आपको प्रॉमिस किया और सामने से भी मुझे प्रॉमिस ही मिला है. दे आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. सो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में देर आर 2 प्रॉमिसेस, वन फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर द अदर. अच्छा, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं? प्रॉमिसेस में बी म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट. म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का मतलब होता है कि दोनों प्रॉमिसेस साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जाएंगी. देखो, मैं फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है, अब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं उन्हें निभाने की बात कर रहे हैं. तो म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रॉमिसेस किए थे वो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे और वो भी साथ में. तो X प्रॉमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू Y एंड Y promises to pay on delivery. तो X गुड्स डिलीवर करेगा और Y उसी समय पेमेंट करेगा. दीज आर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट. दोनों पार्टीज साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे. म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, पहले आप परफॉर्म करो फिर मैं. परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी is dependent upon the prior performance of the other party. This is known as mutual and dependent. म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है? हम दोनों ने अपनी अपनी डेट्स डिसाइड कर ली हैं. आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे, मैं अपनी डेट पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूँगी. दिस इज़ नोन एज म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट. व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस? देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मे हैव टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. यही तो होता है म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, सेक्शन 51. तो जब तक आप रेडी नहीं हो, मैं अपनी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करूँगी, क्योंकि दोनों को साथ में ही परफॉर्म करना होता है. So when the reciprocal promises have to be performed simultaneously, promisor is not bound to perform the promise unless and until promisee is ready and willing to perform his promise. Sometimes order is fixed. अरे भाई, ऑर्डर फिक्स्ड है तो उसी ऑर्डर पे परफॉर्म करेंगे. सेक्शन 52. तो मैंने आपसे कहा पहले आप घर बनाओ फिर मैं पेमेंट करूँगी.
तो पहले आप घर बनाओगे, उसके बाद मैं पेमेंट करूँगी। ऑर्डर फिक्स है। अगर ऑर्डर फिक्स नहीं किया है तो देख लो ना नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या डिमांड करते हैं। जैसे आप चले गए बैंक के पास लोन लेने और बैंक बोलते हैं सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो इट इज़ अंडरस्टूड पहले सिक्योरिटी दो फिर लोन मिलेगा। इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, सेक्शन 53। अब मान लो ए प्रोमिसेस टू रिमूव द रॉक्स एंड क्लियर बीज माइन। बी बोलते ठीक है तू ये काम कर, क्रशर मैं देता हूँ तुझे। अब बी जब तक क्रशर नहीं देगा तब तक ए अपना काम नहीं कर सकता। बी ने क्रशर दिया ही नहीं तो क्या ए अपने रॉक्स वगैरह निकालने का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो इन दिस केस बी इज़ प्रिवेंटिंग ए फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। दिस इज़ नोन एज in this case you are preventing the promise from being performed, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented। तो ए के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। सेक्शन 54 बात करता है म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट की। तो पहले आप परफॉर्म करो फिर मैं परफॉर्म करूँगी। परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी इज़ डिपेंडेंट अपॉन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। तो जब तक वो पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर लेती मैं अपना प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, पार्टी ने फेल कर दिया तो हम उससे कॉम्पेंसेशन रिकवर कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए प्रोमिसेस टू बिल्ड द हाउस फॉर बी एंड बी प्रोमिसेस टू सप्लाई टिम्बर एंड मटीरियल। फिर बी ने अपना काम किया ही नहीं। अरे भाई जब तक तुम मुझे मटीरियल नहीं दोगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? सो इन दिस केस ए बेचारा अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर ही नहीं पा रहा। ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बी। अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में है to do something which is legal and other is illegal, so only the legal part will be valid and enforceable, illegal will become void। Effect of alternative promises being illegal, section 58। X ने Y को 10,000 रुपीज़ दिए। Y बोलते अच्छा ठीक है राइस मिला ना तो राइस ले आऊँगा, ऑल्टरनेटिवली अगर ड्रग्स मिले तो ड्रग्स ले आऊँगा। Now in this case, your alternative promise consists of one branch which is legal, rice, and other branch which is illegal, drugs। Only the legal part can be enforced, illegal part becomes void। वो enforce नहीं कर सकते। अब सबसे important part आ जाता है हमारा section 55 का, time as essence of contract। Time as essence मतलब it is very important for the contract to be performed on time। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पर टाइम इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेंस? जितने भी कमर्शियल या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पर हम कंसिडर करते हैं दैट टाइम इज़ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर पार्टीज़ ने प्रॉमिस किया हुआ है देन टाइम इज़ एसेंस। टाइम इज़ एसेंस का मीनिंग क्या होता है? दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टीज़ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया ऑन टाइम तो पार्टी को लॉस हो सकता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर पार्टीज़ एग्री कर लेती हैं, देखो भाई आप रॉ मटेरियल मुझे 15 अप्रैल को दे देना वरना मेरी प्रोडक्शन डिले हो जाएगी। यहाँ पर टाइम इज़ एसेंस क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन टाइम। जैसे कोचिंग होती है वो भी टाइम पे देना बहुत ज़रूरी होता है वरना बच्चे एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे। अच्छा, मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस था लेकिन फिर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइम से परफॉर्म नहीं किया, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। वॉइडेबल मतलब अग्री पार्टी डिसाइड कर सकती है कि उसको इमिजिएटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है या फिर उसको वो डीले थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना है। देखो भाई जो भी डिसीजन लेते हो ना फिर बाद में वो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अब आपने डीले एक्सेप्ट कर लिया फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते ये बोल के कि अरे आपने तो लेट परफॉर्म किया था अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। कैंसिलेशन का ऑप्शन आपको दिया था ना तब क्यों नहीं किया? अब आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, आप जो भी डिसीजन लोगे फिर आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन जितने भी नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे सेल ऑफ इमूवेबल या फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पर पार्टीज़ ने खुद ही बोल दिया ठीक है थोड़ा बहुत डीले हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जहाँ पर टाइम इज़ नॉट एन एसेंस, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ डीले होने की वजह से आप कॉम्पेंसेशन ज़रूर क्लेम कर सकते हो। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि टाइम इज़ एसेंस और नॉट? देखो अगर प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है देन टाइम इज़ एसेंस, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है जैसे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी इमूवेबल है उसका प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। आज अगर 1 करोड़ का फ्लैट है 4 दिन बाद भी वो 1 करोड़ का ही रहने वाला है ना। लेकिन अगर गोल्ड और सिल्वर या शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वहाँ पर टाइम ऑटोमेटिकली असेंस हो जाता है। तो जहाँ पर असेंस नहीं है आप सिर्फ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते।
देन वी हैव वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे आपसे अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 10,000 रुपये लेने हैं, 2,000, 3,000, 5,000, ऐसे हमारी अलग अलग ट्रांजैक्शंस है टोटलिंग टू 10,000 रुपीज़। अब आप 10,000 ना देते हुए मुझे सिर्फ 4,000 देते हो। अब डेटर बताता भी नहीं है कि कौन सा डेट सेटिस्फाई करना है, तो क्रेडिटर किस हिसाब से वो पैसे को अप्लाई करे, दैट इज़ कवर्ड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगर डेटर सामने से बता देता है, सेक्शन 59 बोलता है, अगर डेटर ने बोला है तो आपको वो पैसा उसी डेट पे अप्लाई करना है। जैसे 3 डेट्स थे मेरे, 2,000, 3,000, 5,000, डेटर बोल देता है 5,000 वाले का डेट सेटिस्फाई कर दो, तो जो 4,000 की पेमेंट मुझे मिली है वो मैं यूज़ कर लूँगी टू सेटिस्फाई द डेट ऑफ 5,000। तो उसमें से 5,000 में से 4,000 मिल गए, 1,000 अभी बाकी है। तो सबसे पहला जो मेरा सिचुएशन है वो बोलता है डू वॉट द डेटर वॉन्ट्स। समटाइम्स डेटर तो कुछ भी नहीं बोलता है, बट द सर्कमस्टांसेस इम्प्लाई। तो ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट चेक दे देता है 3,000 का, मतलब ही इज़ इंडिकेटिंग दैट द सेकेंड डेट ऑफ 3,000 इज़ टू बी सेटिस्फाइड, इन दैट केस द सेकेंड डेट ऑफ 3,000 विल बी सेटिस्फाइड। तो वो एग्जैक्ट चेक दे देता है 3,000 का, तो वो हम अप्लाई कर देंगे टू द सेकेंड डेट। अच्छा, डेटर कुछ भी नहीं बताता, सर्कमस्टांसेस भी इम्प्लाई नहीं करते, तो फिर क्रेडिटर तू अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट कर ले, सिर्फ डेटर को इन्फॉर्म कर देना। सेक्शन 60। अच्छा, लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन 61, दोनों लेज़ी हैं, दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं कर रहे। तो हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें तो उनको एडवाइस करना है, तो हम उनको बोलते हैं ठीक है, वी विल अप्रोप्रिएट द अमाउंट इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। जो डेट पहले इनकर हुई थी वो पहले सेटिस्फाई होगी, तो क्रोनोलॉजिकली फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो जो डेट पहले आपने इनकर की थी वो पहले सेटिस्फाई करो। तो इन दिस केस हम उनको बता रहे हैं कि जो पेमेंट आपको मिली है उसे कैसे अप्रोप्रिएट करना है। दिस इज़ कवर्ड इन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सेक्शन नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 59, 60 एंड 61। डिटेल्ड पॉडकास्ट और बिजनेस लॉ बुक के लिए विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com and I will see you in my next audio session.